بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملکی دفاعی نظام ناقابل تسخیر بنانے کی طرف اہم کامیابی۔ ایئر ڈیفنس ہائی میج سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ اٹلی کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی اطالوی سفیر اینڈریس فیریریس سے الوداعی ملاقات میں گفتگو۔ اٹلی کے سفیر کا پاکستان میں قیام کے دوران مثالی تعاون پر اظہار تشکر۔ اٹلی کی اقتصادی ترقی میں مقیم پاکستانیوں کی خدمات کو بھی سراہا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے جرمنی کے عالمی فوڈ ہول سیلر گروپ کے وفد کی ملاقات۔ صدر مملکت کو پاکستان میں میٹرو گروپ کی سرمایہ کاری پر بریفنگ۔ کاروباری سرگرمیوں کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ملک ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سلیکان سپر ٹیکنالوجی پروگرام میں خود کفالت کی جانب پاکستان کا اہم قدم ہے۔ منصوبے سے جدید ترین ٹیکنالوجی کے حصول میں معاونت ملے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر۔ منصوبے کی تکمیل میں پاک فضائیہ کی قیادت اور افسروں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی آرمی چیف کے ہمراہ تھے۔ آرمی چیف نے کراچی کور ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا۔ آپریشنل تیاریوں، تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ۔ تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان واپس کرنے کا معاملہ۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سپریم کورٹ میں سماعت کل تک ملتوی۔ سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرنا اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ ملک اور سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ دوران سماعت 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ بحری قزاقی اور انسانی سمگلنگ سمیت دیگر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شمالی بحیرہ عرب میں سی گارڈ مشق 2024 جاری۔ مشق کا مقصد تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطے کو مربوط اور فعال بنانا ہے۔ مشقوں میں پاک بحریہ کے بحری جہاز، ہیلی کاپٹرز اور سپیڈ بوٹس نے حصہ لیا۔ مشق سی گارڈ کا سی فیز 13 جنوری تک جاری رہے گا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج مظاہر علی اکبر نقوی کے معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی 15 فروری تک ملتوی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اجلاس کی صدارت کی۔ وفاقی حکومت شہر بانو کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اٹارنی جنرل کا بیان۔ عام انتخابات کی تیاریاں جاری۔ امیدواروں کو انتخابی نشان کل سے الاٹ کیے جائیں گے۔ عام انتخابات سے 15 روز قبل پولنگ سٹیشنز کی حتمی فہرست آویزاں کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر 13 جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا۔ مسلم لیگ جناح اور جے یو آئی نورانی کو انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ پیپلز پارٹی انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ عوام کی زندگیوں میں بہتری لانا حقیقی مشن ہے۔ معاشی استحکام اور امن و امان کے قیام کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد تمام تر توانائیاں قومی ترقی کے لیے صرف کریں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لاہور میں خطاب۔ سانحہ 9 مئی کی ملکی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ جس نے عدلیہ کے خلاف مہم چلائی اسے قانون کا سامنا کرنا چاہیے۔
پی ٹی آئی بند گلی میں آ چکی، انہیں عام انتخابات میں شکست واضح دکھائی دے رہی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں کتنے لوگ موجود تھے؟ 1 سال قبل شامل ہونے والے کو چیئرمین بنا دیا گیا۔ خواجہ محمد آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ قیادت کے فقدان کی وجہ سے ملک معاشی میدان میں پیچھے ہے۔ عوام نے موقع دیا تو عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے توانائیاں صرف کریں گے۔ عالمی سطح پر ملکی وقار میں اضافہ، نوجوانوں اور خواتین کو بااختیار بنانے سمیت باعزت روزگار کی فراہمی ترجیح ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا ثوابی میں شمولیتی جلسے سے خطاب۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیل کے حملوں میں مزید شدت آ گئی۔ صہیونی حملوں میں مزید 239 افراد شہید ہو گئے۔ 10,000 معصوم بچوں سمیت شہداء کی تعداد 23,708 ہو گئی۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے کی سماعت مکمل، فیصلہ چند روز میں سنایا جائے گا۔ صدر عالمی عدالت انصاف سماعت سے قبل عدالت کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکہ اور برطانیہ کے یمن میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے، 5 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کا کشیدگی سے گریز کرنے کا مطالبہ۔ روس کی درخواست پر یمن کی صورتحال پر غور کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ حملوں کے خلاف نیو یارک میں احتجاجی مظاہرہ۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کا کشمیریوں کی املاک ضبط کرنے کا سلسلہ جاری۔ تحریک حریت اور جموں کشمیر مسلم لیگ کے تمام اثاثے ضبط کرنے کی ہدایت۔ قابض حکومت انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کے لیے متعدد حریت رہنماؤں اور تنظیموں کی املاک ضبط کر چکی ہے۔ لوک سبھا کے انتخابات جیتنے کے لیے نریندر مودی کی بھونڈی چال، رام مندر کا قبل از وقت افتتاح کر دیا۔ کانگریس کا رام مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت سے انکار۔ بی جے پی مذہب کو سیاست میں گھسیٹ رہی ہے، کانگریس کا موقف۔ انتخابات سے قبل ایودھیا میں رام مندر کا افتتاح جہالت ہے، مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی کا بیان۔ پاکستانی فلم، ٹی وی اور سٹیج کے سینئر اداکار خالد بٹ کو لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سماجی شخصیات اور شوبز سے وابستہ افراد کی شرکت۔ 50 برس پر محیط کریئر میں خالد بٹ اپنی حقیقت سے قریب اداکاری کی وجہ سے مقبول رہے۔ مداحوں نے خالد بٹ کے وفات کو فلم اور ٹی وی کے لیے بڑا نقصان قرار دے دیا۔ It's in the air and out. Oh, slow ball. Out this time. On strike. That is loose. Not this time. آکلینڈ میں 5 میچز کی سیریز کا پہلا T20 میچ، میزبان نیوزی لینڈ کی پاکستان کے خلاف 46 رن سے کامیابی۔ ڈیرل مچل اور کین ولیمسن کی نصف سینچریز، عباس آفریدی اور کپتان شاہین آفریدی کی 3 وکٹیں۔ پاکستان کی جانب سے بابر اعظم نے سب سے زیادہ 57 رنز بنائے۔ ٹم ساؤتھی نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ پاکستان سپر لیگ کے نویں ایڈیشن کے شیڈیول کا اعلان۔ PSL 9 میں مجموعی طور پر 34 میچز کھیلے جائیں گے۔ لیگ کا آغاز 17 فروری سے دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان مقابلے سے ہوگا۔ فائنل 18 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے میچز کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ اور قومی ٹیم کی ہانگ کانگ نیٹ بال چیلنج کپ میں پہلی کامیابی، میزبان ٹیم کو 39 کے مقابلے میں 63 سکور سے شکست۔ پاکستان ایونٹ میں اپنا دوسرا میچ کل اور تیسرا میچ 14 جنوری کو کھیلے گا۔
नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने मुल्की दिफाई निज़ाम नाकाबिले तस्खीर बनाने की तरफ अहम संग मील उबूर किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी एयर डिफेंस ने सोनमियानी में जारी अलबेजा सौम जंगी मशकों के दौरान जदीद तरीन हाई टू मीडियम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स का कामयाब तजर्बा किया। इस तजर्बे में कम बुलंदी पर और इंतहाई बुलंदी पर दुश्मन के जंगी जहाज़ों और ड्रोन्स को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत को कामयाबी से जांचा गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, कोर कमांडर कराची, कमांडर आर्मी एयर डिफेंस, इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन और इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी एयर डिफेंस की तरफ से कामयाब तजर्बा काबिल सताइश है। कामयाब मश्क आर्मी एयर डिफेंस कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और अहदाफ को निशाना बनाने की बेहतरीन अक्कासी कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसल्लह फ़ौज अहद हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक वेपन सिस्टम को जदीद अंदाज में ढाल रही है ताकि किसी भी खतरे का बर वक्त और मौसर जवाब दिया जा सके। आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस सेंटर का भी दौरा किया, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जफर इकबाल को बतौर कर्नल कमांडेंट आर्मी एयर डिफेंस कोर का रैंक भी लगाया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इतालवी सफ़ीर एंड्रियस फेरेरेज ने अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए सफ़ीर की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इटली के साथ पाकिस्तान के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ शोबों ज़राई टेक्नोलॉजी, तालीम और सियाहत में तिजारत, सरमायाकारी और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इतालवी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए इटली की इक़्तिसादी तरक्की में मुतहर्रिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात की भी तारीफ़ की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है। मुल्क में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। जर्मनी के आलमी फूड होल सेलर मेट्रो ग्रुप के वफ्द से मुलाकात के मौके पर सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी और कारोबार के लिए पुरकशिश मुल्क है। मुल्क में कारोबार के लिए साजगार माहौल मौजूद है। वफ्द ने सदर मुमलिकत को पाकिस्तान में मेट्रो ग्रुप के कारोबार और सरमायाकारी से आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन कराची का मंसूबा कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से पाकिस्तान ने सुपर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम में पेशरफ्त और खुद किफालत के मंजिल के हुसूल की जानिब अहम पेशकदमी की है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इन ख्यालात का इजहार कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से नौजवानों और आने वाली नस्लों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हुसूल में मुआवनत मिलेगी। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन जैसे जदीद तरीन मंसूबे की तकमील को संगे मील करार देते हुए पाक फ़ज़ाइया की क़यादत और अफसरों की पेशावराना महारत की तारीफ़ की। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन दुनिया भर में एरोस्पेस, साइबर एंड IT के हवाले से बेहतरीन इदारा गर्दाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस इदारे के तहत कौमी उमंगों के मुताबिक तहकीक और तरक्की के हवाले से जदीद मराकज़ बनाए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा किया। कोर कमांडर कराची ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। कोर हेडक्वार्टर्स कराची में आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती और इंतजामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को शहदा के खानदानों और जवानों की फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दामात से भी आगाह किया गया। और नाज़रीन, बहरी क़ज़ाकी और इंसानी स्मगलिंग समेत दीगर चैलेंजेस से निमटने के लिए शुमाली बहरे अरब में सी गार्ड मश्क 2024 जारी है। तफसील बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास। सी गार्ड मश्क में खुले समंदर में इंसदाद बहरी कज़ाकी और मंशियात, सर्च एंड रेस्क्यू और जहाज पर बोर्डिंग ऑपरेशंस का अमली मुजाहरा किया गया। मश्क में पाक बहरिया के बहरी जहाज, हेलीकॉप्टर्स और स्पीड बोट्स ने हिस्सा लिया। मश्क के दौरान समंदर में मौजूद मंशियात और ममनू अशिया से लदी मुश्तबा बोट, हाईजेक किया हुआ बहरी जहाज और समंदर में डूबते हुए माही गिरों को बचाने का अमली मुजाहरा भी पेश किया गया। मश्क का बुनियादी मकसद जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते को फाल और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना है। इस एक्सरसाइज का मकसद तमाम स्टेक होल्डर जो लगभग 50 स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना, राब्तों को फाल करना और SOPs को क्रिस्टलाइज करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्तों में इस तरह की एक्सरसाइजेज ना सिर्फ हमारी बाहमी राब्तों और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाएंगे बल्कि रिस्पांस टाइम को भी मजीद कम किया जा सकता है। मश्क सी गार्ड का सी फेज 13 जनवरी तक जारी रहेगा। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहर अली अकबर नकवी के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इजलास की सदारत की। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी हुकूमत शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का इरादा रखती है। शहरबानो केस के मुताबिक जज के इस्तीफे के बाद उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इजलास की कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुल्क और सियासी जमातों में जमहूरियत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये रिमार्क्स तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस देने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि सियासी जमात के हर रुकन को वोट डालने और इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है। केस की समाअत 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कर रहा है। समाअत कल दिन 10 बजे फिर होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आइन के आर्टिकल 179 और 206(1) के तहत इस्तीफा दिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा वजीर आजम की एडवाइस पर मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर होने से मुतालिक वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की तरफ से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। साबिक जज एजाजुल एहसन ने गुज़श्ता रोज इस्तीफा दिया था, जो सदर मुमलिकत ने कल ही मंजूर कर लिया था। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों की समाअत का मरहला मुकम्मल होने के बाद ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन था। इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों की सहूलत के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने के वक्त में रात 9 बजे तक का इजाफा किया। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात कल से अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात से 15 रोज कबल पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त आवेजा कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने 15 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले का फैसला सुना दिया। पार्टी इंतखाबात न कराने पर 13 जमातों को डीलिस्ट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक मुस्लिम लीग जिन्नाह और JUI नूरानी को इंतखाब लड़ने की इजाजत होगी। डीलिस्ट की गई सियासी जमातों में सुन्नी तहरीक, ऑल पाकिस्तान तहरीक, पाकिस्तान अमन पार्टी, ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस, पाकिस्तान बराबरी पार्टी, बहावलपुर अवामी पार्टी शामिल हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर मसीही अवामी पार्टी, पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी, पाकिस्तान पार्टी, नेशनल पीस काउंसिल पार्टी को भी डी लिस्ट कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसले महफूज कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्तों की समाअत की। बेंच ने परवेज इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वतन अजीज नफरत और तकसीम की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम अवाम की खिदमत की सियासत जारी रखते हुए तमाम तर तवानाइयाँ कौमी तरक्की के लिए सर्व करेंगे। वो लाहौर में इदारा मिनहाजुल कुरान के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में इदारा मिनहाजुल कुरान के मरकजी सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। वो सेक्रेटेरिएट के 24 घंटे जिक्र अज़कार के मकाम गोशा दरूद भी गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम और अमन अमान के क़याम के लिए हम सबको साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती और अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाना ही हमारा हकीकी मिशन है। हमारा जो पैगाम है वो ये है कि हम नफ़रत और तकसीम को सियासत का मुकाबला करेंगे, अवाम की खिदमत की सियासत करेंगे और हम वो वाहिद जमात है जिसमें वो सलाहियत है। हमारा तारीख भी ये रहा है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि इदारा मिनहाजुल कुरान आकर इस बात की खुशी है कि हमारे बड़ों ने जिस सफर का आगाज किया उसे नई नस्ल आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मॉडल रियासत बनाएंगे ताकि इस्लाम का पुरअमन चेहरा दुनिया के सामने लाया जाए। पुरअमन तरीके से हम इस नफ़रत की सियासत को का मुकाबला करते हुए एक नया सोच और नया सियासत तारुफ कराना चाहते हैं पाकिस्तान में, जिसका फोकस अवाम की खिदमत में हो, ना कि कोई ज़ाती एजेंडा के हो। और मैं समझता हूँ कि इस जदोजहद में हम साथ मिल के इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर दुनिया भर में ये जो पाकिस्तान का असल पुरअमन चेहरा है, हम दुनिया
के सामने लेकर आएंगे। पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का मिनहाजुल कुरान की रुकनियत हासिल करना बाइस मुसरत है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत और आज़ाद इस्लामी फलाही रियासत शहीद बेनज़ीर भुट्टो और डॉक्टर ताहिरुल कादरी का ख्वाब है, जिसके लिए दोनों ने जदोजहद की। खुर्रम नवाज गंडापुर ने NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी की हिमायत का ऐलान भी किया। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन की रिहाइशगाह गए, जहां उन्होंने एतजाज़ अहसन की अहलिया की हमशीरा निघत चीमा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरहुमा के इसाले सवाब और लवाहिकीन के सब्र जमील की दुआ की। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कराची में MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की रिहाइशगाह पर गए और उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मरहूमा की रूह के इसाले सवाब और दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए सियासी गहमा गहमी में तेजी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वस्ती पंजाब के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से मोहम्मद शकील मलिक। पंजाब का मुल्की सियासत में हमेशा से ही अहम किरदार रहा है। इसी वजह से तमाम सियासी जमातें यहाँ से उम्मीदवारों के इंतखाब पर खुसूसी तवज्जो देती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी पंजाब में सियासी तौर पर सरगर्म नजर आते हैं। वो NA 127 से उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा राजा परवेज अशरफ गोजरा से, कमर जमान कायरा गुजरात से, नदीम अफजल चंद सरगोदा से और चौधरी मंजूर अहमद कसूर से मैदान में हैं। लाहौर से आसिफ हाशमी, चौधरी अब्दुल गफूर, औरंगजेब बरकी, शाहिद अब्बास, इफ्तिखार शाहिद, मुनीर अहमद, चौधरी आतिफ, मोहम्मद जियाउल हक, अमजद अली, अदील गुलाम मुहीउद्दीन और इकबाल अहमद कौमी असम्बली के हलकों से उम्मीदवार हैं। कसूर से पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर, शहीम सफदर, मोहम्मद इरशाद खान और सैयद रजा अब्बास, ओकाड़ा से गुलाम मुश्तबा, सजादुल हसन, मोहम्मद यासीन, राय अहमद हसन, पाकपतन से मियाँ हमायूं सरवर, साहिवाल से मोहम्मद जकी चौधरी, महर गुलाम फरीद काठिया और अली जावेद, जबकि ननकाना साहिब से मोहम्मद वकास, शाहजहान अहमद भट्टी, शेखपुरा से सरदार अली, आतिफ हुसैन विर्क और राय एजाज अहमद खान उम्मीदवार हैं। रावलपिंडी से महरीन अनवर राजा, सैयद कमर अब्बास, बाबर सुल्तान, सुमेरा गुल और मुख्तार अब्बास, अटक से खुरम शहजाद, सरदार सलीम हैदर, जबकि चकवाल से राजा मोहम्मद रिजवान, काजी इल्ताफ हुसैन और जहलम से तस्नीम नासिर, सैयद अमीर हमजा पीपल्स पार्टी की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। सरगोदा से नदीम अफजल चंद, राव अब्दुल गफूर, तस्नीम अहमद कुरैशी, तारिक महमूद गुज्जर और साहिबजादा नईमुद्दीन, खुशाब से मोहम्मद अली सांवल आवान, मियाँ वाली से नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान, राना अजीजुर रहमान, वजीराबाद से एजाज अहमद सम्मा, सैयद वसीमुल हसन नकवी, सियालकोट से सैयद इश्तियाकुल हसन, ख्वाजा अवैस मुश्ताक, मलिक नदीम आवान, राना महमूद अशरफ, चौधरी एजाज चीमा, नारोवाल से तारिक जावेद, सखावत मसीह और गुजरावाला से इम्तियाज सफदर वड़ाइच, हारिस मेहरान, मलिक शकीलुर रहमान, डॉक्टर इमरान रहमानी और चौधरी मोहम्मद मालिक विर्क पीपल्स पार्टी की तरफ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। चिन्योट से सैयद इनायत अली शाह, फैसलाबाद से उस्मान नवाज, मोहम्मद शाहजहां खान, मोहम्मद खान नदीम, राना मोहम्मद फारूक सईद, मिस नेहा जावेद, सिदरा सईद बंदेशा, मोहम्मद अफजल, नईम दस्तगीर खान, राना मुबशर, बिशारत अली, तोबा टेक सिंह से सरशार हसन चीमा, मोहम्मद जुल्फकार, अमजद याकूब, झंग से सैयद हैदर बुखारी उम्मीदवार हैं। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों से राजा इमरान अशरफ, सैयद सिब्तुल हैदर बुखारी और चौधरी असद परवेज कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है। वतन अजीज़ को हकीकी मायनों में कायद और इकबाल का मुल्क बनाने के लिए सबको कोशिश करना होगी। सवाबी में शमूलियती इज्तिमा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि इक़्तिदार में आकर गैर तरक्याती अखराजात और प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा करेंगे। मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा और आम आदमी की दहलीज तक इंसाफ पहुँचाया जाएगा। सिराजुल हक का कहना था कि नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाकर बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत और वर्कर्स ने क़ैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने के बावजूद अपने नज़रिए पर कभी समझौता नहीं किया। इक़्तिदार में आकर पसमानदा तबके की तरक्की के लिए काविशें जारी रखेंगे। मुल्तान में इंतखाबी हल्के NA 148 की यूनियन काउंसिल कासिम बेला में वर्कर्स से खिताब करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने दीगर सियासी जमातों की निस्बत मुल्क में अवामी फलाह बहबूद के रिकॉर्ड काम करवाए। जनूबी पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ है। आम इंतखाबात में यहाँ से भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे।
سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ محمد آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی کو عام انتخابات میں شکست نظر آ رہی ہے، جیت کی صورت میں یہ الیکشن قبول کرنے کے عادی ہیں، اگر ہار جائیں تو نہیں مانتے۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 2013 میں بھی ان لوگوں نے الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ خواجہ محمد آصف نے سوال کیا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں کتنے لوگ موجود تھے؟ 1 سال پہلے شامل ہونے والے کو چیئرمین بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ کھمبے کو بھی کھڑا کریں تو جیت جائیں گے، میرا مشورہ ہے کہ کھمبے کا نشان ہی رکھ لیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی والے بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، اس لیے انہیں راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مختلف سیاسی جماعتوں کے تنازعات رہے ہیں، تاہم 9 مئی کو جو انہوں نے کیا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جس نے عدلیہ کو بدنام کیا اس کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے۔ رہنما مسلم لیگ نون برجیس طاہر نے شاہ کوٹ میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کی خدمت کو اپنا شعار سمجھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت نواز شریف کی قیادت میں حکومت میں آ کر ملک کو مسائل سے نکالے گی۔ برجیس طاہر نے کہا کہ قائد مسلم لیگ نون کی سربراہی میں ملک ایک مرتبہ پھر ترقی کی منازل طے کرے گا۔ ملکوال بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے این اے 69 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ناصر اقبال بوسال نے کہا ہے کہ ملکوال بار میرا گھر ہے، وکلاء برادری کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اگر آئندہ الیکشن میں کامیابی ملی تو عوامی فلاح و بہبود کے لیے ترجیحی بنیاد پر کام کریں گے۔ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق امیدواروں کے نام حلقہ نمبر کے مطابق جاری کر دیے گئے ہیں۔ جماعت اسلامی اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے کراچی سے اپنے صوبائی امیدواروں کی حتمی فہرست کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف حلقہ این اے 242 سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ شہر قائد سمیت سندھ میں انتخابی سرگرمیوں کی تفصیل بتا رہے ہیں حسن ناصر صدیقی اپنی اس رپورٹ میں۔ انتخابات 2024 کے لیے صوبہ سندھ میں مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کراچی کے قومی اسمبلی کے حلقے این اے 242 سے اپنے کاغذات واپس لے لیے ہیں۔ مسلم لیگ نون سندھ کے ترجمان کے مطابق پارٹی نے این اے 242 سے خواجہ شعیب کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ جماعت اسلامی کراچی نے 47 نشستوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کیا ہے، جن میں حافظ نعیم الرحمان اور فاروق نعمت اللہ سمیت دیگر امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے بھی کراچی سے 53 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے، جن میں قومی اسمبلی کے 17 اور صوبائی اسمبلی کے لیے 36 امیدوار شامل ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نائب صدر فیصل ندیم شیخ اور پارٹی کے کراچی کے صدر احمد ندیم آوان کے علاوہ دیگر امیدوار حصہ لیں گے۔ پی ٹی آئی نے کراچی کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے، جبکہ جی ڈی اے نے حسنین علی مرزا، حسام مرزا اور دیگر امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے ہیں۔ نوشر و فیروز میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار سابق وفاقی وزیر مملکت سید اصغر علی شاہ نے اپنے حلقے میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سندھ سے بھرپور کامیابی حاصل کر کے عوام کے مسائل حل کرے گی۔ تحریک انصاف سکھر ڈویژن کے ڈپٹی سیکریٹری اور این اے 201 اور پی ایس 24 سے نامزد امیدوار منور چوہان نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ سکھر ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے منور چوہان نے کہا کہ سکھر سے پی ٹی آئی کو 1 لاکھ سے زائد ووٹ ملے، مگر پارٹی نے مقامی کارکنوں اور عوام کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی سنجیدہ اقدام نہیں اٹھایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے صالح پٹ کے علاقے سنگرار میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات کے لیے ہماری تمام تر تیاریاں مکمل ہیں اور ہماری انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ آج سنگرار میں عمائدین شہر سے ملے ہیں اور ساتھیوں نے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، عام انتخابات میں 1 ماہ سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے۔ ملک کی سیاسی جماعتوں کے اہم رہنما کن حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ ملکی سیاسی جماعتوں کے قائدین اور سرکردہ رہنما بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور 3 بار کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف لاہور کے حلقہ این اے 130 اور مانسیرہ کے حلقہ این اے 15 سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز بھی لاہور کے حلقہ این اے 119 سے میدان میں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اس بار قصور کے حلقہ این اے
132 और लाहौर के हल्का NA 123 से इंतखाब लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोट के हल्का NA 71 से मैदान में हैं। इसी तरह राना सनाउल्लाह अपने आबाई शहर फैसलाबाद के हल्का NA 100 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन भी मैदान में हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपने आबाई शहर नवाबशाह के हल्का NA 207 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना के हल्का 194 के अलावा लाहौर के हल्का 127 से भी इंतखाब लड़ रहे हैं। यहाँ से जुल्फकार अली भुट्टो ने 1970 में इलेक्शन लड़ा था। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान के हल्का NA 148 से किस्मत आजमा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान पशीन के हल्का NA 265 और डेरा इस्माइल खान के हल्का NA 44 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन मुल्तान के हल्का NA 149 और लोधरा के हल्का NA 155 से इंतखाबी मार्के में शरीक हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान लाहौर के हल्का NA 117 और NA 147 खानेवाल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह जमात इस्लामी के रहनुमा सिराजुल हक लोअर दीर के हल्का NA 6 से मैदान में हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, इंतखाबात के इनेकाद में पोलिंग अमले की जिम्मेदारी कलीदी नौइयत की होती है। कराची के लिए पोलिंग अफसरान की तरबियत का मरहला मुकम्मल हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल जमाली। शहर कायद के तमाम अजला में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग और पोलिंग अफसरान की तरबियत इलेक्शन कमीशन के मास्टर ट्रेनर्स कर रहे हैं। पोलिंग अफसर की जिम्मेदारियों में वोटर का असल कौमी शनाख्ती कार्ड चेक करना, इंतखाबी फहरिस्त में वोटर का नाम और सिलसिला नंबर बुलंद आवाज से पुकारना शामिल है। पोलिंग का अमला जो भी है वो तमाम ट्रेंड हो, पोल से पहले उसकी ट्रेनिंग इसलिए कराई जाती है कि वो पोलिंग से रिलेटेड अपनी जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो बेहतर तौर पे वेल अवेयर हो जाए। इलेक्शन कमीशन की मावनत के लिए सरकारी इदारों के अलावा महकमा तालीम से बड़ी तादाद में अफरादी क़ुव्वत फराहम की जाती है जो पोलिंग के अमल को एहसान अंदाज में अंजाम देती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारे अफसरान बाला का ये ताउन इलेक्शन कमीशन के साथ हमेशा रहा कि जब भी इलेक्शन हुए तो उन्होंने हमेशा उनके साथ ताउन किया। इसमें जो नई चीज़ें शामिल होती हैं हम वो भी सीखने का मौका मिलता है और हमारे जो ट्रेनर जो हैं वो हमें एक एक चीज़ समझाते हैं। नुमाइंदे के NIC का नंबर चेक करना है, सब चीज़ चेक करने के बाद पोलिंग बूथ पे किस तरह जाकर उनको करना है, बहुत अच्छे से समझाया है। तरबियत पाने वाले अमले को हिदायत की गई है कि माजूर, हामला खवातीन, बीमार, उम्र रसीदा अफराद और ख्वाजा सराओं को तरजीही बुनियाद पर वोटिंग के अमल से गुजारा जाएगा। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ दहशत गर्दी जारी है। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में सेहूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद शिद्दत आ गई है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक सेहूनी हमलों में मजीद 239 अफराद शहीद हो गए, जिसके बाद इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 23,708 हो गई, जिसमें 10,000 मासूम बच्चे शामिल हैं। काबिज इसराइली फ़ौज के हमलों में ज़ख्मियों की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई है। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि वस्ती गजा में देर अल-बलाह के इलाके अल-मशअला में फ़ज़ाई हमले में 9 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मुकदमे की 2 रोज़ा समाअत मुकम्मल हो गई। आलमी अदालत इंसाफ के सदर का कहना है कि फ़ैसला चंद रोज़ में सुना दिया जाएगा। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर मुकदमे में इसराइल की कानूनी टीम ने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। पहले रोज़ की समाअत के दौरान जनूबी अफ्रीका के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। जनूबी अफ्रीका की कानूनी टीम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसराइल की फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाई का मकसद फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है। सेहूनी फ़ौज ने 1948 के नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। वकला ने मौज़िज़ अदालत से दरख्वास्त की कि वो इसराइल को गजा में अस्करी मुहिम बंद करने का हुक्म सादर फरमाए। दी हेग में समाअत से कबल अदालत के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। उन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से रोज़ाना हमलों में सैकड़ों निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है, जिसमें अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इसराइल को गजा में फौरी जंगबंदी का पाबंद किया जाए। अमरीका और बरतानिया ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों में हौसी बागियों के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। इन हमलों में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 6 ज़ख्मी हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमलों में अल-हदीदा बंदरगाह समेत हथियारों के ज़ख़ीरा, फ़ज़ाई दिफा और लॉजिस्टिक सहूलियात को निशाना बनाया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में हौसियों के हथियारों के बड़े ज़ख़ीरे को तबाह किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका और बरतानिया ने इत्तहादियों की हिमायत के साथ हौसी बागियों के अहदाफ को निशाना बनाया। ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद अस्करी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। हौसी बागियों ने हमलों को जारहियत करार देते हुए खबरदार किया है कि जिम्मेदारों को कीमत चुकाना पड़ेगी।
یمن کی صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہو رہا ہے۔ اجلاس روس کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے فوجی کارروائیوں اور یمن میں فضائی حملوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کشیدگی سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کا خاتمہ ضروری ہے۔ بحیرہ احمر کی سلامتی اور استحکام نہ صرف علاقے میں آزاد جہاز رانی کے لیے لازمی ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بحیرہ احمر میں یمن اور علاقے کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں خطے میں سلامتی اور ممالک کے مفادات کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ یمن پر حملوں کے خلاف نیو یارک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کہیں بھی ہو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے یمن، غزہ اور مشرق وسطیٰ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ کچھ دیگر خبروں میں یہاں آپ کو بتائیں، کاروباری ہفتے کے آخری دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ انڈیکس نے 65,000 کی نفسیاتی حد کو ایک دفعہ پھر عبور کیا، تاہم پروفٹ ٹیکنگ کے باعث کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 20 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 64,634 پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 64 کروڑ 33 لاکھ سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 20 ارب روپے سے زیادہ تھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 135 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 216 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 12 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور اب ملک میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے صنعت کاروں اور تاجروں کے لیے اچھی خبر۔ وزارت خزانہ اور کارانداز نے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے لیے ملک کی پہلی خصوصی کریڈٹ گارنٹی کمپنی متعارف کرا دی۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں خصوصی تقریب ہوئی جس میں وزارت خزانہ اور کارانداز پاکستان کے درمیان نیشنل کریڈٹ گارنٹی کمپنی لمیٹڈ کے قیام کی شراکت داری کے لیے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ تقریب میں برطانوی ہائی کمیشن، SECP، اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا تھا کہ معاہدے کی بدولت ملک میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو قرضے کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ ایوان صنعت و تجارت اسلام آباد نے IMF فنڈ کے اجرا کو معاشی بحالی کے سفر میں پاکستان کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ چیمبر آف کامرس کے صدر احسن بختاوری نے نگران وزیر اعظم، آرمی چیف، وزیر خزانہ سمیت معاشی ٹیم کو کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان معاشی بحالی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ صدر ICCI نے کہا کہ IMF قسط کے اجرا سے روپے کی قدر میں بہتری، اسٹاک مارکیٹ میں مزید استحکام آئے گا۔ بجلی چوری کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کے ثمرات نظر آنے لگے۔ 31 دسمبر سے 8 جنوری کے دوران بجلی چوروں سے مزید 2 ارب 13 کروڑ سے زائد روپے وصول، جبکہ 199 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ مجموعی طور پر اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد اور ملتان سے 1 ارب سے زائد روپے وصول کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گجرانوالہ، پشاور، ضمشدہ اضلاع، حیدرآباد، سکھر اور کوئٹہ سے بھی سینکڑوں افراد گرفتار، جبکہ کروڑوں روپے کی ریکوری کی گئی۔ 1 ستمبر سے جاری مہم کے دوران اب تک 63 ارب روپے سے زائد کی رقم وصول کی جا چکی ہے۔ کارروائیوں کے دوران 37,000 سے زائد افراد کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔ سینڈک کاپر اینڈ گولڈن مائن پروجیکٹ کے توسیعی منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس منصوبے کا افتتاح MCC ریسورسز ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے چیئرمین نے کیا۔ منصوبے سے مقامی روزگار، میٹل پروسیسنگ کی صلاحیت اور بلوچستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ ینگ جی جن نے اس توسیع کو چاغی کے لیے اچھی خبر قرار دیتے ہوئے بھرپور معاونت پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے پاکستان میں کروشیا کے سفیر ڈاکٹر ڈریگو اسٹمبوک نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے عبور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگراں وزیر خارجہ کو کروشیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی پاکستان کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا اور کراچی میں کروشیا کے اعزازی قونصلیٹ کے افتتاح کو بھی سراہا۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ مشرق وسطیٰ رضوان سعید نے دورہ مصر کے دوران مصری معاون وزیر خارجہ احمد شاہین سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے سیاسی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات سمیت دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور مصر میں باہمی تعاون اور بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز مزید 958 غیر قانونی افغان پناہ گزین اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ افغان شہریوں میں 210 مرد، 198 خواتین اور 550 بچے شامل تھے۔ واپس جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,65,614 تک پہنچ گئی ہے۔
और यहाँ आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में अब्दुल्ला खादरी और खालिद उर्फ जानान शामिल हैं। मारे जाने वाले दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल समेत मुतादिद वारदातों में मतलूब थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने कार्रवाई करते हुए दाइश के खुदकुश बमबार और सहूलतकार को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दस्ती बम, पिस्तौल और 2 खुदकुश जैकेट्स बरामद कर ली हैं। पेशावर में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए SSP ऑपरेशन CTD नजमुल हसनैन लियाकत ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश से है, जो अहम शख्सियात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां भारतीय हुकूमत कश्मीरियों और हुर्रियत तंजीमों को जदोजहद आज़ादी कश्मीर से उनकी वाबस्तगी पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए उनके असासों को जब्त करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोदी हुकूमत ने अपने ताज़ा इक़दाम में मकबूजा कश्मीर में अपनी कठपुतली इंतजामिया को तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग के तमाम असासे जब्त करने और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की हिदायत की है। काबिज इंतजामिया पहले ही श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर और मकबूजा इलाके में हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों की ज़ेर मिल्कियत सैकड़ों मकानों और दीगर अमलाक जब्त कर चुकी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों से जनूबी एशिया के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। उन्होंने आलमी बिरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वह मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले और तनाज़ा कश्मीर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल कराने में अपना मौसर किरदार अदा करे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भारतीय हुकूमत अपने सियासी मुखालिफिन को हिरासा करने के लिए तहकीकाती इदारों को इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला को भारतीय तहकीकाती इदारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से तफ्तीश के लिए तलब करने की मजम्मत की। मुआविन ख़ुसूसी इंसानी हुकूक मिशाल मलिक कहती हैं कि कश्मीर के मसले पर पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। रावलपिंडी में कश्मीर के हवाले से मशावरती कमेटी के इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिशाल मलिक ने कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रही है। हम मकबूजा कश्मीर के अवाम की आवाज़ को दुनिया भर में पहुँचाएंगे। कश्मीर से बड़ा कोई सिंबल नहीं हो सकता पाकिस्तान की यूनिटी का। और इस वक्त जो नस्ल कुशी हो रही है, ख़ास तौर पे जो मोदी सरकार जो 50 लाख से ज़ाहिद वहाँ पे डोमिसाइल्स इशू कर दिए उन्होंने, पैलेस्टाइन की फिर भी खबरें जो है फुटेजेस जेनोसाइड की, वॉर क्राइम्स की दुनिया के सामने आ रही हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ख़ास तौर पर इस वक्त जो हमारी हुर्रियत की क़यादत है उनको भी जिस तरीके से नज़रबंद किया हुआ है, जेलों के अंदर कैद करके उनको टॉर्चर किया जा रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को हम लोगों ने मिलकर उसको तवाना करना है, जिंदा करना है और उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचानी है। और नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात से कबल नई चाल चलते हुए राम मंदिर का इफ्तिताह करने का मंसूबा बनाया है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में कांग्रेस रहनुमाओं ने शिरकत से इनकार कर दिया है। इनका कहना है कि ये बीजेपी और RSS के सियासी नजरियात की मनसूबाबंदी है। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना है कि एक नामुकम्मल मंदिर का इफ्तिताह इंतखाबी मुहिम की एक चाल है। कांग्रेस से पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में जाने से इनकार किया था। मुख्तलिफ दुकानदारों और शॉपिंग मॉल्स को धमकी दी गई है कि राम मंदिर के इफ्तिताह के बैनर्स लगाए जाएं। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा है कि इंतखाबात से कबल अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह बीजेपी की जहालत है। वो लोगों को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने पर यकीन नहीं रखती। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकज़ई कहते हैं कि शहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। शहदा के लवाहिकीन ने इस्लामाबाद आकर मुनाफिकीन के चेहरे बेनकाब कर दिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर माहिरिंग बलोच का ट्विटर भारत से चलाया जा रहा है। हम दुश्मन के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहेगा। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर शहदा फोरम के एहतजाजी कैंप से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकज़ई का कहना था कि शहीदों के बच्चों को मुलाजमतों के हुसूल में मदद करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात जाना चकज़ई का मज़ीद कहना था कि अगर माहिरिंग बलोच बैरूनी फंडिंग बंद करे तो हम कुशादा दिल हैं। रियासत जो फराख दिली दिखा रही है उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। साबिक सूबाई वज़ीर जमाल रईसानी का इस मौके पर कहना था कि जाना चकज़ई शहदा के कैंप में आए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है हमारे मुतालिबात मंजूर किए जाएंगे। वतन पाकिस्तान के शहदा की याद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोयटा में रैली निकाली गई, जिसमें कौमी हीरोज़ और शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। रैली के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर शहदा की तस्वीर थीं। इस मौके पर मुक़र्रीन ने कहा कि मुल्क व कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज़ को कौम हमेशा याद रखेगी।
खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर इत्तलात फिरोज जमाल शाह काका खेल ने कहा है कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर ने जिस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से मुल्क का दिफा किया, पूरी कौम को इन पर फख्र है। पेशावर में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के भाई अनवर शेर खान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारतीय फौज भी कर्नल शेर खान शहीद की जुर्रत और बहादुरी की मोतरफ है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात इंतहाई तकलीफ देह हैं, ये मुल्क उन्हीं शहीदों की वजह से आबाद है। सानह 9 मई को पेश आने वाले शरपसंदी के वाक़यात से अवाम में सख्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इस हवाले से अवाम का कहना था कि जो फौज का नहीं वो किसी का नहीं। 9 मई का सानहा मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती है, वाक़े में मुलव्वस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। जो आर्मी का नहीं है वो हमारी आवाम का भी नहीं। हमने भी एक दफ़ा उसको ट्राई किया, उसने नारे लगाए यंगस्टर्स के लिए नौकरियां, मकान, सब चीज़ दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं। 9 मई का जो वाक़या हुआ है और जो वीडियो जिस तरह अभी जो रिसेंटली मीडिया के थ्रू आई है, तो मेरे ख्याल में ये हमारे मुल्क के साथ एक ज़्यादती है जिन्होंने की है और इनको मतलब है वाकई सजा होनी चाहिए। हॉस्पिटल कोई हमला करने वाली जगह थोड़ी ना है। अगर यही चीज़ सेफ्टी में नहीं आती है तो फिर लोग जो सिटीज़न हैं वो किसी जगह पे सेफ नहीं रह सकते। इनकी ये बहुत बड़ी साजिश थी कि पाकिस्तान को कमज़ोर करे, हमारे इदारों को कमज़ोर करे, इससे पूरी दुनिया में बदनामी हो। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये नाकाम हो गई साजिश। गिलगित बल्तिस्तान से जो वफद गया था क्या 9 मई को, तो यहाँ से डंडा बरदार गए थे, सीएम हाउस से गए थे। हम खुद हैरान हो गए कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल किया है इन लोगों ने। हमारे मुल्क की जो फौज है इसको बीच में बदनाम करने की साजिश जो की गई है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि जिन लोगों ने ये वाक़या कराया उनको इसके अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ इस्तगासा के 4 गवाहान के बयानात कलमबंद किए थे। तोशाखाना रेफरेंस में इस्तगासा के मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तना ख़त्म किए जाने के बाद साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत का दोबारा से बाकायदा आगाज कर दिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ गवाहान को दोबारा तलब करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। लाहौर में PIC की नई इमरजेंसी के दौरे के मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अस्पताल में सफाई के नाक़िस इंतजामात और टाइल्स और काउंटर्स पर मिट्टी देखकर नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर, महकमा तामीरात और मुवासलात के हुक्काम और MS से इस खराब सूरत हाल पर बासपुरस की और सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने व्हील चेयर पर मरीज की खैरियत भी दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में पंजाब बार काउंसिल की नई बिल्डिंग का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वकला मुआशरे का अहम हिस्सा हैं और मेरे दिल के करीब हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब बार काउंसिल के लिए 5 करोड़ रुपए की ग्रांट का चेक दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की खबरों में खुश आमदीद। नाज़रीन, वफाकी दारुल-हुकूमत इन दिनों शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, मास्क का इस्तेमाल करने और कोई अलामात ज़ाहिर होने पर टेस्टिंग की हिदायत जारी की हैं। तफसीलात देखिए सदफ अफसल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से एक है। बारिशों के ना होने, शदीद सर्द और खुश्क मौसम के बाइस वबाई अमराज में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बात करें अगर वफाकी दारुल हुकूमत की, तो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के वायरस शहरियों की सेहत मुतासर कर रहे हैं। 90% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं, जो बच्चे हैं, वो नमूनिया का शिकार हैं। सारे वायरसेस की टेस्टिंग कर रही हैं और हमारे पास अभी तक एक पेशेंट भी कोविड का नहीं आया, लेकिन टेस्टिंग में हमें पता चलता है कि ये ज़्यादा इन्फ्लुएंजा और RSV वायरस है। अगर बुखार, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब है, उनको टेस्टिंग की तरफ भी जाना चाहिए। आपको पता है कि NIH में इन्फ्लुएंजा हो या कोविड-19 हो,
दोनों की टेस्टिंग फ्री हो रही है। जुड़वा शहरों में फैलने वाले अमराज और टेस्टिंग की जरूरत के हवाले से कौमी इदारे सेहत और आगा खान यूनिवर्सिटी की जानिब से इस्लामाबाद में आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। This is a peak influenza season which begins in October. We have a rise in number of cases in December, January. Our seminar today about was seasonal annual influenza vaccination for certain high priority groups. پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پر سیزنل انفلوئنزا کی ویکسینیشن کے لیے کوئی پالیسی ابھی تک نہیں بنی، اور یہ جو اسٹڈی آغا خان یونیورسٹی نے کی ہے کہ سیزنل انفلوئنزا کی ویکسینیشن کیوں امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس 70% پیشنٹ جو ابھی رپورٹ ہو رہے تھے دیٹ آر دا ریلیٹڈ وتھ ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن. ہمارے پاس اس کیسز کی کوئی مارٹلٹی سچ نہیں ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس شدید موسم میں سانس کی بیماریوں، ٹی بی اور الرجی کے مریضوں کا خاص خیال رکھا جائے. صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا، جبکہ گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور ہلکی برف باری کا امکان ہے. پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند اور سموگ چھائی رہے گی. خطہ پٹوار میں صبح کے اوقات میں بعض مقامات پر کوہرا پڑنے کی توقع ہے. ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کی بات کریں گے، جو کہ کچھ یوں رہی. لہ میں کم سے کم درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، گوپس میں -6، گلگت -5، استور -4، جبکہ قلات میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی. اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور میں 4، کراچی 10، پشاور 1، جبکہ کوئٹہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں. موسم کی خبروں سے اتنا ہی.